Hello students. Now this is the time for learning our chapter number 15 of Social Studies section Bloom book, and the name of the chapter is Our Beautiful Earth. हमारी सुंदर पृथ्वी, हमारी खूबसूरत पृथ्वी. So you all know that our earth is very beautiful. It has various landforms and water bodies. आप सबको पता है अलग अलग तरीके के landforms हैं और water bodies हैं. Different water bodies are rivers, lakes, ponds, waterfalls, sea, right? And the landforms where we live in Uttar Pradesh is a plain landform. Rajasthan is having desert. Deccan or the southern area is the plateau area. Similarly, the seashore areas are the coastal areas, and the northern area of the India is having high mountains, hills, and valleys. Right, so we have different landforms on our earth, and different water bodies are also there. So here we are studying about our earth. What are the different landforms available on the earth, and what are the different water bodies which we see on the earth. We all live on the earth. आप सबको पता है हम पृथ्वी पर रहते हैं. It is our home, और ये हमारा घर है. We all know the earth is our home. It is not only our home, it is the home of all the living things, all the animals and the plants. Our earth is like a giant ball. हमारी पृथ्वी कैसी है? एक बहुत बड़ी गोले की तरह, एक बहुत बड़े बॉल गेंद की तरह. The surface of the earth is covered with land and water. When you see the model of the earth, this globe, you get to know that the earth is being divided into land and water. 2/3 of the earth is having water and 1/3 is land or the continent. 1/4 of the surface is land. Here it has been divided into 4 parts, where it is written that 1/4 is land and 3/4 is water. The globe is the model of the earth. The earth has oceans and continents. All the water bodies has been divided into different oceans, and the land part of the earth is being divided into different continents. We have 7 continents on the earth and 5 oceans on the earth. Oceans are the large water bodies of salty water. और जो oceans हैं ये खारे पानी की बहुत बड़ी बड़ी water bodies हैं. And the continents are the large areas of the land. जो बहुत सारा land area एक साथ है उसको एक continent में divide कर दिया गया है. So these are the two important terms, the continent and the oceans. You will be learning in more detail about the continent and ocean when you go to the next standard in the next class. Now the different landforms. सभी जगह आप रहते हैं, आपने देखा होगा हर जगह पृथ्वी एक जैसी तो नहीं दिखती. कहीं प्लेन होती है, कहीं माउंटेन पहाड़ ज़्यादा होते हैं, कहीं घाटी होती है, कहीं पे रेगिस्तानी एरिया होता है जिसे जहाँ सैंडी सॉइल होती है या रेतीली ज़मीन होती है. तो हर जगह के हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है. द लैंड इज़ नॉट सेम एवरीवेयर. द हाईलैंड्स एंड द लो लैंड्स फॉर्म द नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ. ये नेचुरली अर्थ पे ऐसा है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की ज़मीन होती है. तो प्लेन्स जहाँ हम रहते हैं, जहाँ पे अनाज उगाए जाते हैं, समतल ज़मीन होती है, उसे हम प्लेन कहते हैं. लो एंड फ्लैट लैंड इज़ कॉल्ड प्लेन. मेनी रिवर्स फ्लो थ्रू द प्लेन्स. और रिवर जब माउंटेन से ओरिजिनेट होके प्लेन पर आती है तो काफ़ी फैल जाती है, ब्रॉड हो जाती है, और रिवर के आसपास का एरिया बहुत ही फर्टाइल उपजाऊ ज़मीन बोली जाती है उससे, जहाँ पे खेती की जाती है और अनाज उगाए जाते हैं. इसीलिए लोग भी प्लेन सरफेस पे रहना प्रेफर करते हैं. मेनी रिवर्स फ्लो थ्रू द प्लेन्स. द सॉइल ऑफ द प्लेन इज़ वेरी फर्टाइल. जो मिट्टी होती है प्लेन ज़मीन की वो बहुत उपजाऊ होती है. इट इज़ गुड फॉर फार्मिंग, जो कि खेती के लिए बहुत अच्छी है. मेनी पीपल लिव ऑन प्लेन. इसीलिए
लोगों का इन्फ्लक्स ज़्यादा है, बहुत सारे लोग प्लेन सरफेस पे रहना पसंद करते हैं। आप देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की आबादी देखें और हम पहाड़ों में से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से कंपेयर कर लें तो उत्तर प्रदेश की आबादी वहाँ से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये प्लेन ज़मीन है, यहाँ पे बहुत खेत हैं, उपजाऊ ज़मीन है, इसलिए लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। माउंटेन्स एंड हिल्स, अब इनमें क्या डिफरेंस है? आज सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। माउंटेन्स आर हैविंग अ वेरी स्टीप पीक, जहाँ पे बहुत चढ़ाई होती है, कोनिकल पीक होता है। नॉर्मली इनका पीक इज़ कवर्ड विथ स्नो, इसे हम माउंटेन कहते हैं। वेयर एज हिल्स आर नॉट एज हाई एज माउंटेन एंड उसकी पीक भी बहुत स्टीप या कोनिकल नहीं होती है। Mountains are very high, hills are not so high. Some high mountains are covered with snow. कुछ बहुत high mountains हैं northern area में जिनके peak covered रहते हैं snow से. The tip of the mountain is called peak. और जो tip होता है mountain का, this conical one, it is known as the peak of the mountain. Flat land between the two hills or the mountains is called valley. अब दो mountain के बीच के या दो हिल्स के बीच का जो फ्लैट लैंड है उसे हम वैली या घाटी कहते हैं। मेनी क्रॉप्स कैन बी ग्रोन हेयर एज द वैलीज आर फर्टाइल लैंड, और वैलीज जो होती हैं, घाटी, वो भी फर्टाइल लैंड होती है, तो वहीं पर पहाड़ों की जो अनाज होता है पहाड़ों का, वो वैली में उगाया जाता है। प्लेट्यू, अब ये एक नया टर्म है, जब आपने पहले पढ़ा माउंटेन हिल्स, अब ये प्लेट्यू। प्लेट्यू जिसे पठार बोलते हैं। अ प्लेट्यू इज़ अ हाईलैंड विद अ फ्लैट टॉप। ये एक ऊंची ज़मीन है, ज़मीन से, प्लेन ज़मीन से थोड़ी ऊंची ज़मीन है, और उसका जो टॉप होता है वो प्लेन होता है, इसीलिए इसको टेबल टॉप भी कहा जाता है या टेबल लैंड भी कहा जाता है। जैसे आपके घर में आपने सेंटर टेबल देखा है, वो आप रखते हैं तो ऊपर से कैसे फ्लैट होता है, पर वो नीचे ज़मीन से ऊंचा होता है, तो इसे टेबल लैंड या फ्लैट टॉप भी बोला जाता है। तो ये प्लेट्यू रीजन है। जो डेक्कन प्लेट्यू है वो आपका जो मध्य प्रदेश है, नागपुर, छोटा नागपुर है, सदर्न डेक्कन प्लेट्यू है, ये सब आपका प्लेट्यू रीजन में आता है। डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। डेजर्ट्स आर हॉट, ड्राई एंड सैंडी प्लेसेस, जो बहुत सूखी है, गर्म है और रेतीली जैसी ज़मीन है, वो डेजर्ट है। वेरी लिटिल रेन फॉल्स हियर, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, वेजिटेशन पुअर होता है। कैक्टस ग्रोज इन अ डेजर्ट, और कैक्टस प्लांट यहाँ पर ग्रो करते हैं। द कैक्टस स्टोर वाटर इन इट्स फ्लैशी स्टेम। कैक्टस क्यों ग्रो करते हैं? बिकॉज वो अडेप्टेड हैं सैंडी डेजर्ट में ग्रो करने के लिए, उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, उनका अडेप्टेशन ऐसा होता है कि वो वहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं। उनकी स्टेम जो है वो बहुत फ्लैशी होती है और लीफ नहीं होती है उनमें, क्योंकि लीफ से वाटर इवेपोरेट हो जाता है, ब्रॉड लीफ से, ट्रांसपिरेशन से, तो उनकी पत्तियां नहीं होती हैं, जबकि उनके कांटे होते हैं, स्पाइंस, तो वहाँ से पानी का लॉस नहीं होता है, तो अपने फ्लैशी स्टेम में वो वाटर स्टोर करके बहुत समय तक बिना पानी के भी ज़िंदा रह सकते हैं। तो ये तरीका है कैक्टस के अडेप्टेशन का, जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। द कैमल इज़ अ यूज़फुल एनिमल इन द डेजर्ट। अब रेगिस्तान में इतनी रेत होती है जहाँ पे आपको ऐसे एनिमल की ज़रूरत है जो आसानी से चल सके, जिसके लेग्स बहुत टॉल होते हैं, लॉन्ग लेग्स होते हैं, ताकि वो रेत में अगर थोड़े अंदर भी जाएं तो भी वो ईज़िली मूव कर सकता है। इसीलिए कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, और इसका बहुत इस्तेमाल है वहाँ लगेज ले जाने के लिए और बाकी अपने ज़रूरत का काम करने के लिए। आइलैंड, ISLAND, आप बहुत सारे बच्चे इसको आइसलैंड भी पढ़ते हैं, बट इट इज़ आइलैंड। आइलैंड क्या है? आइलैंड ज़मीन का वो टुकड़ा है जिसके चारों तरफ पानी होता है, उसे हम
आइलैंड कहते हैं। पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड आइलैंड। जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है। तो ये सारी जो इंडिया की आइलैंड्स हैं वो मैंने आपको बताए। ये एक ज़मीन का ऐसा टुकड़ा है जिसके चारों तरफ पानी होता है। पोलार रीजन मतलब पोल वाला एरिया। अर्थ के 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दोनों बहुत ठंडी जगह हैं जहाँ पे बर्फ़ हर समय रहती है, सूरज की रोशनी बहुत कम रहती है। तो ऐसे नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा पूरे साल भर बर्फ़ से ही कवर्ड रहता है, वहाँ पे बर्फ़ पाया जाता है। ये बहुत ठंडी जगह हैं और यहाँ पे पोलार बेयर, पेंगुइन ऐसे जानवर पाए जाते हैं। और यहाँ पे वेजिटेशन नहीं होता है, ग्रीनरी नहीं होती है, अनाज नहीं मिलता है। तो ये तो हमारे हो गए डिफरेंट लैंड फॉर्म्स डिफरेंट आपको याद हो गए होंगे। पहला मैंने बताया था प्लेन्स, फिर मैंने बताया था माउंटेन, फिर बताया था हिल्स, फिर बताया था प्लेट्यू, उसके बाद बताया था मैंने डेजर्ट, फिर मैंने आइलैंड बताया एंड पोलार रीजन बताए। तो ये मैंने आपको 6-7 जो हैं ये डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बताए। नाउ कमिंग टू वाटर बॉडीज़ जहाँ भी पानी होता है अर्थ पे वो वाटर बॉडी है। द प्लेसेस ऑन द अर्थ वेयर वाटर इज़ फाउंड आर कॉल्ड वाटर बॉडीज़। चाहे वो झरना हो, वाटरफॉल, नदी हो, लेक हो, पॉन्ड हो, सी हो, वॉट एवर इट इज़, वाटरफॉल, रिवर, लेक, पॉन्ड, सी एट्सेट्रा आर द डिफरेंट वाटर बॉडीज़ ऑन द अर्थ। ये सब अलग अलग पानी के स्रोत हैं पृथ्वी पर। Now, after landforms and water bodies, when we talk about our beautiful earth, बहुत खूबसूरत है हमारी पृथ्वी। इसका प्राकृतिक जो इसकी सुंदरता है, नेचर ब्यूटी, वो बहुत अच्छी है। पर इंसानों ने भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं नेचर में, अर्थ पे चेंजेस किए हैं अपनी कंफर्ट और अपनी फैसिलिटी के लिए भी। तो मैन मेड चेंजेस ऑन द अर्थ के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। मैन हैज़ कंस्ट्रक्टेड रोड्स एंड रेलवे लाइंस। आज आपको जो फैसिलिटी मिल रही है इधर से उधर ईजिली ट्रांसपोर्टेशन की, बिकॉज ऑफ द रेलवे लाइन एंड गुड रोड्स, तो ये इंसान ने कंस्ट्रक्ट किए हैं अपनी सुविधा के लिए। He has made bridges and dams over rivers. रिवर को क्रॉस करना पहले बहुत मुश्किल होता था, इसलिए उसके ऊपर ब्रिजेस बन गए हैं और डैम्स भी बनाए गए हैं वाटर को स्टोर करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करने के लिए। He has built factories and buildings. इंसान ने सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए, चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्रीज़ बनाए हैं, रहने के लिए बिल्डिंग्स बनाई हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स हैव चेंज्ड द फेस ऑफ आवर अर्थ। और ये सारी चीज़ों ने, चाहे वो रोड हो, रेलवे लाइन हो, ब्रिजेस हो, डैम्स हो, फैक्ट्रीज़ या बिल्डिंग, इन सब चीज़ों ने हमारी पृथ्वी का चेहरा बदल सा दिया है। द अर्थ इज़ नो लॉन्गर द सेम एज इट वॉज बॉर्न। जब पृथ्वी का जन्म हुआ था तब वो पृथ्वी बहुत गर्म थी कहते हैं। उस समय इंसान जो हैं वो बंदरों जैसे थे, तो वैसी अब पृथ्वी नहीं रही। अब पृथ्वी में मैन मेड कंस्ट्रक्शंस के कारण, मैन मेड चेंजेस के कारण बहुत सारे मैन मेड कंस्ट्रक्शंस के कारण बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। इट इज़ आवर फोरमोस्ट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। तो ये हमने अपनी सुविधा के लिए तो किया है, पर ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने पृथ्वी की रक्षा करें और उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचाएं। क्योंकि हम अपनी सुविधा के लिए जो हमने थोड़े बहुत चेंजेस किए थे, कई बार हम इतने ग्रीडी हो जा रहे हैं कि हम उन चेंजेस को इतना ज़्यादा कर दे रहे हैं कि जिससे नेचुरली जो चीज़ें हैं अर्थ में वो डिस्ट्रॉय होती जा रही हैं और ये फ्यूचर में हमें ही नुकसान पहुंचाएगी। तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने अर्थ की देखभाल करें और उसको कोई भी नुकसान
ना पहुंचाए. So this was all about this chapter, Our Beautiful Earth. Hope you have understood this chapter very well. Thank you.